Welcome all. Please tell Aman Kumar to rejoin the meeting. वो by chance वो meeting से निकल गया. Please tell somebody. Please tell Aman Kumar to rejoin the meeting. He was actually removed because of certain technical difficulties. So without wasting time, let us go back to whatsoever we were doing. We were busy with a part of SQL. So we were busy with SQL. And in SQL, we have just seen the simple select clause. So, and I said that in this SQL prompt, oh no. In this SQL prompt, we write like this: select is a keyword, select followed by column or columns from. So you haven't presented the screen. Oh, thank you very much. एक second, please. Huh? एक second. So now we wrote SQL, we wrote select. This was a keyword, I said, column or columns from table. Here actually we can even write expressions. I will right now tell you how to go about it. Expressions. Okay. From table or tables, and then I said where condition. Where condition. And this condition was not at all compulsory or mandatory, so we put it under square bracket. So we wrote the first statement. ये SQL prompt हो सकता है बार बार नहीं बनाए. Okay, एक ही चीज है, बार बार लिखने का जरूरत नहीं. So then what I do is I write like this: select asterisk from EMP. Select asterisk from EMP. इसमें क्या होता है? We have already seen, and we know this asterisk is what? It is nothing but a wild card. It is used for select everything. ये देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं. Now, if I want to use something like I want to see not everything, but now I know the column heading, so I want to see a limited columns. I want to see a limited number of columns. Then what we do is we write like select. Here you need to remember, yes, select वगैरह जो लिख रहे हैं, these are not at all case sensitive. Select, I write ename, comma, empno, comma, job from emp. ये अगर हम लिखते हैं तो what I get to see here is we only will see ename, employee and job of those all the employees. इतना ही हम उसमें देख पाएंगे. ename, employee number of job, यही हम देख पाएंगे सब एम्प्लॉइज का. नाउ द पॉइंट इज, अभी तक हम वेयर में नहीं आ रहे, हम सिर्फ अभी सिलेक्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं उसको हम देखना चाह रहे. देन आई राइट समथिंग कि एसक्यूएल, हम इसको देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि सिलेक्ट ename, comma, sal from emp. Select ename, comma, sal from emp. तो ये हमको क्या देगा? It will give me all the employees name and their salaries. Salaries per month. Okay. अब हम चाहते कि नहीं, हम उसका एनुअल सैलरी देखें. तो एनुअल सैलरी कहां से करेंगे? So what we do is we write like this: select ename, comma, sal multiplied by 12 from emp. तो ये जो कर रहे हैं, इट विल टेक एवरी सैलरी फील्ड, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देगा एंड इट विल जनरेट मी अ फिगर. लेकिन
ये चीज जो है ये खाली स्क्रीन में हो रहा है, अंदर डेटाबेस में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, ये वैल्यू उठ के आ रहा है किसी बफर में, उस बफर में उसको 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको खाली दिखा दिया जा रहा है। लेट अस सी दिस, इसका क्या इफेक्ट होता है हियर, लेट मी शो यू दैट। ओके, so let me open this SQL. As I told you, for the first time what we do is we say connect. It will ask me username, I write Scott. It will ask for password, I write TIGER. हम लिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है इसमें, I press enter. So it says connected. Now इसमें हम क्या करते हैं, लाइन साइज को थोड़ा बढ़ा के रखते हैं ताकि वो बेटर दिखे। Set line size 100. Then what I do is I write what I told you. Select ename, comma, job from EMP. You can see here, ये दो पार्ट में दिख रहा है, क्या कि लाइन साइज हम बढ़ाए थे, पेज साइज नहीं बढ़ाए हैं। So you can see here, this is ename and job. So सब लोगों का नाम दिख रहा है। एक चीज ध्यान में रहे, यहाँ सब कैपिटल लेटर में दिख रहा है। दिस इज वेरी मच केस सेंसिटिव, बाद में हम अभी बताएंगे। Now I write, okay, set page size 40, say. Now I write select ename, comma, job, comma, sal from PMP. हमको नाम दिखाया, जॉब दिखाया, सैलरी दिखाया, लेकिन ये एनुअल सैलरी नहीं है। सो व्हाट आई डू इज आई विल हैव टू फाइंड आउट द एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी कैसे निकालेंगे, अब हम इसको फिर से टाइप करें। नो, आई डोंट वांट टू टाइप इट, हम यही इसको ईडी लिख दे रहे हैं। आ गया मेरा क्वेरी। जॉब सैल के जगह पे हम क्या किए, यहां पे आई राइट मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिए इसको। डोंट चेंज एनीथिंग, यहां सेमीकोलन नहीं देते हैं। यू कैन सी दिस स्लैश, दैट इज फॉर द सेमीकोलन, इसमें और कुछ नहीं देना पड़ता। आई टोल्ड यू ऑल्ट F एंड एग्जिट, पूछेगा सेव करना है, ऐसे सेव, कोई नाम नहीं देना है इसमें। नाउ यू प्रेस फॉरवर्ड स्लैश, इसको दबाते हैं तो यू कैन सी व्हाट हैपेंस। You can see what happens. Ename job sal multiplied by 12. You see, 5,000 था, ये 60,000 हो गया. Everything is multiplied by 12. Okay. So then I have obtained this. लेकिन I have obtained the annual salary. लेकिन ये नाम जो है, ये नाम तो चूंकि हमारे एम्प्लॉय टेबल में नहीं था, वहां क्या है, ename है, जॉब है, सैल है, हायर डेट है, MGR है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सैल मल्टीप्लाइड बाय 12 तो नहीं था, और हमको ये ठीक नहीं लग रहा है क्या है, हम इसको कुछ दूसरा नाम देना चाह रहे हैं। सो इन दैट केस व्हाट आई डू इज आई डू अगेन ईडी। तुम अगर चाहो तो फिर से टाइप कर सकते हो, आई एम नॉट टाइपिंग दिस। यहां एक गैप देते हैं, और गैप देने के बाद हम इसको लिख रहे हैं एनुअल सैल। मैं यहां पे गैप नहीं दे सकते, एनुअल और सैल के बीच में ब्लैंक नहीं दिया जा सकता, इट इज नॉट अलाउड। इट विल टेक इट एज ए कॉलम हेडिंग, नहीं तो एक अंडरस्कोर देके हम लिख रहे हैं एनुअल सैल। तब क्या होगा, यही क्वेरी को अगर चलाते हैं तो लेट अस सी, फाइल, एग्जिट, सेव, आई रीरन द क्वेरी। नाउ यू सी व्हाट हैज हैपेंड। पहले क्या था हमारा, दिस वाज सैल मल्टीप्लाइड बाय 12 कॉलम का हेडिंग। अब कॉलम का हेडिंग क्या हो गया, एनुअल अंडरस्कोर सैल। ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। So this way of writing, you can see here, select ename job sal multiplied by 12 blank annual sal. This is what is called aliasing in SQL. We call this is what we call alias. Alias माने you understand alias? हाँ, बब्बन उर्फ गुड्डू ने इसको पटक डाला, so that उर्फ, that is what is alias. So alias देने के लिए you need to just give a blank, like select, we write ename,
इनेम हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो एक ब्लैंक देके, दिस इज ब्लैंक, तुम टाइप नहीं कर सकते हो, सो ब्लैंक देके हम लिख सकते हैं एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा सैल फ्रॉम एमपी। तो ये अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इनेम के जगह पे अब हमको एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ दिखेगा when it will be displayed in the screen. So now this is what we have learned. अब अगर ये हम सीखते हैं, so then अगर हम ये कर रहे हैं कि नाउ यहां मल्टीप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आई कैन गिव एनीथिंग। So if I can allow multiplication here, से अगर हम ये लिखे थे sal multiplied by 12, तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं, प्लस यूज कर सकते हैं, डिवाइड यूज कर सकते हैं। I can write like this, sal multiplied by 12 plus 1000, इस तरह का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। So you can write any mathematical expression over here in the select clause, like select ename comma sal multiplied by 12 plus 1000 into something 5, कुछ भी। So you can do like this. You can write mathematical expressions with the select clause. वो हम लिख सकते हैं, plus, minus, etc. We have seen how can we write this alias also. ठीक है? So these are the things that we have learned. एक तो है कि हम कॉलम नेम जैसा भी देंगे, उस कॉलम नेम से ही हमको डेटा मिलेगा। गलत सलत कॉलम नेम अगर हम देते हैं जो कि उस टेबल में नहीं है, it will give me erroneous results. So that we know. So now let us concentrate on the where clause. So now select asterisk from EMP where ename equal to Blake. यानी हम चाह रहे हैं कि उस आदमी का नाम जिसका नाम ब्लेक है, उसका डिटेल हम देखें। एक कौन इंसान जो है अभी ज्वाइन कर रहा है, लेट मी सी, अमरजीत पांडे। अमरजीत बाबू वेलकम। आप सोए हुए थे? एनीवे, सो नाउ वेयर इनेम इक्वल टू ब्लेक। अब ये ब्लेक उस टेबल में है, ये हम पहले देख चुके हैं। हम सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी करके ब्लेक जो है वो देख चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि सब आदमी का डिटेल नहीं चाहिए, हमको खाली ब्लेक का डिटेल चाहिए। तो हम इसको कैसे देखेंगे? हाउ डू वी सी दिस? वी राइट दिस क्वेरी, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स, माने तुम कुछ भी लिख सकते हो, हम एस्ट्रिक्स लिख रहे हैं फॉर माई ओन कन्वीनियंस। तुमको जितना देखना है वो यू कैन राइट। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP where ename equal to, you see यहाँ पे एक ब्लेक एक नाम है, ये हम देखें, तो इसीलिए अंदाज वहां पे तुम वहां पे यू जस्ट कैन नॉट राइट ename इक्वल टू टार्जन। तो टार्जन नाम का कुछ खोज के नहीं लाएगा, तुमको बोलेगा नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ename equal to BLAKE. Remember, let us see how it executes. You can see here, it writes employee number, ename, job, MGR, hard date, ब्लेक के बारे में जितना डिटेल है वो हमको बताया। बट बी केयरफुल, जब भी हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग इट विद इन सिंगल कोट, and the single quote strings are highly case sensitive. Let us see this. Select asterisk from EMP where ename equal to Blake. Hey, no row selected because Blake नाम से कोई नहीं मिला उसको, but you can see कि यहाँ पे Blake है. So the point here is this is highly case sensitive in SQL or under Oracle.
whatsoever we are doing is highly case sensitive, right? So now this is what is your where clause, what we have started. So then what we can do is we can write select asterisk. हम बार बार asterisk इसलिए लिख रहे हैं कि हमको अभी where से मतलब है, उधर कॉलम से मतलब नहीं. From EMP where sal equal to 5,000. मिला हमको. भाई एक आदमी है जिसका नाम है किंग, उसका सैलरी 5,000 है. वेयर सैल इक्वल टू 5,000. तो इस पे भी हम कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी वन थिंग, हम यहाँ इसको ईडी कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं. वेयर सैल इक्वल टू अगर है, आई एम पुटिंग ग्रेटर देन 5,000. ओके, सो देन फाइल, exit, save, and I click on this forward slash. So I get where sal greater than 5,000. It says no rows selected. भाई यहाँ देख के आते हैं, यहाँ है क्या वैसा? You can see here in the original table 5,000 से ज्यादा किसी का सैलरी है नहीं. So I can edit this. No rows selected नहीं मिला हमको. You do ed. You write sal greater than say 1,000. You understand इसको पढ़ के, दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मोर और लेस इंग्लिश जैसा है कि भाई सिलेक्ट सब कुछ चुन लो एम्प्लॉय टेबल से. किन लोगों का वेयर जब लिख रहे हो, मैंने कंडीशन, क्या कंडीशन है? जिन लोगों का सैलरी 1,000 से ज्यादा हो. तो इसको देखते ही समझ में आता है कि व्हाट यू आर राइटिंग. दैट इज व्हाई इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड. सो देन आई प्रेस स्लैश हियर. यू कैन सी इतने लोगों का सैलरी जो है 1,000 रुपए से ज्यादा है. 12 rows selected actually है यहाँ पे 14 rows. 14 rows हैं. You can see there are few people, एक का 950, एक का 800 है. तो ये दो लोग जो है स्मिथ एंड जेम्स, ये लोग इसमें नहीं है. See, Smith and Jones are not there in this list. So हम where के साथ ये condition हम लगा सकते हैं. Similarly, I can write अगर हम okay. So if I can write this, if I can write this sal greater than 1,000, so I can write greater than, I can write less than, I can write equal to. You check here, I don't know, not equal to का या तो ये लेगा, otherwise ये लेगा not equal to. ठीक है, or greater than, equal to, less than, equal to, whatever. So these are all the symbols we can associate with these where clause. Where के साथ numeric field के साथ हम ये associate कर ही सकते हैं. Of course, you know the basic. तुम ये नहीं लिख सकते where e name is greater than Blake. That carries no meaning. So with these numeric fields, what we can do is we can do this where sal greater than 1,000. तो इतना सारा स्टेटमेंट्स हम इसके साथ, स्टेटमेंट्स नहीं, इतने सारे ऑपरेटर्स आई कैन यूज विद दिस न्यूमेरिक वेयर कंडीशंस. इसके अलावे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो यूज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कंबाइंड वेयर क्लॉज. कैसे करेंगे? सिलेक्ट asterisk from EMP where sal greater than 1,000 or e name. अच्छा, sal greater than इसको कुछ दूसरा लिखते हैं, 3,000, 1,000 में सब आ जाएगा, और e name equal to Smith. क्या इस कहने का मतलब है इसका? यानी हमको उन लोगों का डिटेल्स देखना है जिनका या तो सैलरी 3,000 से ज्यादा हो या तो उनका नाम स्मिथ हो. ठीक है, लेट अस सी दैट हियर इन द SQL स्क्रीन इटसेल्फ. ओके, अच्छा इसको दोबारा क्यों लिखना? आई डू एन ed MP where sal greater than, I said 3,000
for name equal to Smith. Okay, I go file, exit, save and run. क्या दिखा? 3000 से ज्यादा जिसका सैलरी है, फोर्ड नहीं आया बिकॉज फोर्ड का सैलरी इक्वल टू है। स्कॉट नहीं आया, इक्वल टू है। हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन 3000, राइट? इक्वल टू नहीं ले रहा है, तो ग्रेटर देन 3000 सिर्फ एक ही वैल्यू आया, वो है किंग का, किंग। तो हम बोले तो या तो उसका 3000 से सैलरी ज्यादा होना चाहिए या उसका नेम स्मिथ होना चाहिए। तो नाम स्मिथ, उसका सैलरी इससे कम है, तो दैट इज ओके, नहीं आया, फाइन। सो हियर आई कैन यूज एनी, जैसे हम और यूज किए हैं, तो आई कैन यूज एंड ऑल्सो, एंड नेम इक्वल टू स्मिथ। कुछ नहीं आएगा यहां से। लेट अस सी, फाइल, एग्जिट, सेव, फाइन, नो रोज सिलेक्टेड। ऐसा कोई नहीं है जिसका नाम स्मिथ है और जिसका सैलरी 3000 से ज्यादा है। तो स्मिथ जो है उसका सैलरी, आई एम सॉरी, जो स्मिथ जो है, यू कैन सी हियर, स्मिथ सैलरी इज 800 रुपए। तो ऐसा कोई दूसरा स्मिथ नहीं है जिसका नाम स्मिथ है और सैलरी 3000 से ज्यादा है। सो यू गेट नो रोज सिलेक्टेड। बट आई कैन यूज एंड लाइक दिस, I can use and like this. You know actually, where salary greater than 1000 and salary less than 3000. Okay, क्या इसका मतलब हुआ? I hope you understand the meaning. जहां सैलरी 1000 से ज्यादा हो और 3000 से कम हो, लेट अस से, सर सैलरी पूरा लिख दिया। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई हैव रिटन सैलरी, तो यहाँ पे हम इसको सैल कर देते हैं। ओके, आई मेक इट सैल एंड I do go exit, save, I run this query. So these are the people you see जो कि 1000 से ज्यादा है और 3000 से कम। So I can frame my query depending on my requirement. हम कुछ भी कर लें, I can frame my query interestingly. Now here I would like to give you one question to solve. ठीक है, हम एक क्वेश्चन देना चाहते हैं फॉर यू टू सॉल्व। राइट दिस क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर यू डू दिस, लेट मी टेल यू समथिंग मोर। ओके, हम लोग जब एक सिंपल सा क्वेरी लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम PMP. This is the simplest possible query that you know. Fine. यहाँ पे if you watch it carefully, you will find that this is stored in ascending order. Is it stored in ascending order? 7839, 7698, 7782 इस तरह का कोई ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है क्या? Is it stored in some kind of ascending order या descending order या कोई ऑर्डर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे? माने हम अगर सॉर्टिंग करने का बात कर रहे हैं, इफ आई वांट टू सॉर्ट इट, ठीक है, तो सॉर्ट यहाँ पे किसी भी फील्ड पे हमको तो नजर नहीं आ रहा है कि सॉर्टेड है। हमको सॉर्ट करना है एम्प्लॉय नंबर पे। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम PMP, ऑर्डर बाय, किस पे सॉर्ट करना है? एम्प्लॉय नंबर पे करते हैं, EMPNO। Here what happens? It is sorted in employee number in ascending order. ये sort हो गया employee number पे in ascending order.
हम क्या लिखे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय. दिस आर वेरी, एक सॉर्ट करने के एल्गोरिथम लिखना या प्रोग्राम लिखना, यू नो हाउ बिग इज दैट, बट हियर इट इज जस्ट सिंपल ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर. यू से कि ऑर्डर बाय में तो असेंडिंग हुआ तो डिसेंडिंग कैसे होगा? डेफिनेटली यू विल आस्क दिस क्वेश्चन. सो आई डू ईडी and here I add one term DESC that stands for descending. So I wrote DESC, a keyword here, DESC. You run the query again. You can see here it is sorted in employee number descending. So you can say कि नहीं सर e-name पे sort नहीं हो सकता है क्या? The answer is yes. e-name पे अगर हम sort करने का कोशिश करें, so then order by e-name कर देते हैं यहाँ पे, order by e-name. Okay. File, exit, save, and I rerun the query. Here, e-name A, B, C, D, E, F. It is sorted in alphabetical manner. It is sorted in alphabetical manner. तो तुम्हारा जो भी requirement है, you can sort that accordingly. You can sort it accordingly. You can sort it. You can sort it in two different fields as well. Select asterisk from EMP. Order by job, comma, DEPTNO. Let us see what happens. तो बोले कि पहले जॉब पे सॉर्ट करो. जॉब पे सॉर्ट किया, देन सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय नंबर. तो जिस यहां पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि ये जॉब पे तो सॉर्ट कर दिया, एनालिस्ट, देन क्लर्क, देन मैनेजर, देन प्रेसिडेंट, देन सेल्समैन. ओके, ये जब किया उसके अंदर ये क्या किया, ये ऑटोमेटिकली यू कैन सी ये असेंडिंग ऑर्डर में ले गया. एनालिस्ट में 2 ही था, 20-20, दैट इज ओके. क्लर्क में जो है, जो भी क्लर्क है, इसको सॉर्ट किया क्लर्क के ऊपर, लेकिन उसके बाद किस हिसाब से सॉर्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिपार्टमेंट. यू कैन सी 10, 20, 20, 30. So it sorted on job, then it sorted on the department number also, both in ascending order. लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं डिपार्टमेंट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय जॉब हो, डिपार्टमेंट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट दिस एंड वी विल राइट डिपार्टमेंट नंबर है तो DESC इसको कर देते हैं. So then we save this and we write it this way. You can see here क्लर्क में उलट गया, 10, 30, 20, 20, 10 आ गया, जो कि यहाँ पे क्या था 10, 20, 20, 30. सो हम मल्टीपल फील्ड में भी कभी कभी होता है ना कि यू हैव मच मोर डेटा, उस डेटा के अंदर यू नीड टू सॉर्ट इट इन डिफरेंट सब ग्रुप्स. तो दिस इज काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं. सो दैट वाज योर काइंड ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज. This order by clause was very important. Okay, now then I can do kind of, you know, concatenation also. Concatenation अभी हम लोग नहीं करते हैं. I will see it in a different case. Now order by अगर हम देख चुके, so now what I want to see is अच्छा, एंड और आई हैव टोल्ड यू. तो एंड और का प्रॉब्लम हम पहले, आई नीड टू गिव यू द एंड और प्रॉब्लम्स. ओके, सो नाउ अच्छा नहीं, एंड और यूज करने से पहले सर्टेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स आर देयर, उसको जानना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट लेट अस डू दैट. ओके, so just give the heading somewhere, you write it SQL operators. There are 4 very interesting, very easy operator, very interesting and very important. 4 operators are there, और उसका उल्टा भी होता है.
So number one is between and. केस सेंसिटिव नहीं है ये सब. Number two is in list. Number three is like. Number four is null. Is null. ये चार ऑपरेटर है. Let us see between and कैसे काम करता है. Let us see how this between ये सब कैसे काम करता है. Let us see that. Okay. So very interesting. Select asterisk from EMP where cell between 1000 and 2000. इसमें एक चीज है, 1000 and 2000 are both inclusive. तो हमको वो नहीं लिखना पड़ा ना, where sal greater than equal to 1000 and sal less than or equal to 2000. इसके जगह पे I can have this command straightway, where sal between 1000 and 2000, where these 1000 and 2000 are both inclusive. ओके तो ये हुआ बिटवीन एंड. हम दो वैल्यू यहां पे दे सकते हैं. सिमिलरली सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इन 1000 2000 3000. कहने का मतलब या तो 1000 है या 2000 है या 3000 है, कोई एक. तो इसको हम वैसे भी लिख सकते थे, वेयर सेल इक्वल टू 1000 और सेल इक्वल टू 2000 और सेल इक्वल टू 3000. ओके तो सिमिलरली आई कैन राइट दिस. ये हम इसमें भी लिख सकते हैं. ये दिस आर मच सिंपलर स्टेटमेंट वेयर नेम इन Smith, comma, Blake, comma, Sanjay. Okay. स्मिथ और ब्लेक मिला, संजय नहीं मिला, नहीं आया. तो इनेम जो है हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, इसके अंदर अगर कोई भी नाम है तो हमको दिखा दो. बिकॉज ये सी यहाँ पे 14 रो है. इट इज फॉर वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नॉर्मल एक डेटाबेस में 1 करोड़ इस तरह का रो होगा. हम अगर सर्च कर रहे हैं, सो देयर वी कैन सर्च दिस वे. वी कैन इफेक्टिवली डू. एक्चुअली यहाँ पे हम क्वेरी कर रहे हैं. आई एम मेकिंग क्वेरीज, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू द डेटाबेस एंड द डेटाबेस इज गिविंग मी आंसर. तो हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई उन लोगों का नाम दिखाओ, तो या तो स्मिथ होगा या ब्लैक होगा या संजय होगा. उन लोगों का डिटेल दिखाओ. डिटेल देख लिया हम कि क्या संजय नहीं है, नहीं दिखा, तो इसका मतलब आई अंडरस्टैंड दैट संजय इज नॉट देयर. सो दैट इज द यूज ऑफ बिटवीन एंड इन ऑपरेटर. अब नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग वन. सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP where name like S%. लाइक वर्ड और परसेंट का मतलब होता है एनी की सब्स्टिट्यूशन. यानी ये क्वेश्चन, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? लेट मी टेल यू. द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज whose name starts with S, capital S. तो हम बोले कि whose e name like कैसा है? You understand this Hindi part?
जिसका नाम वो एस से शुरू होता है उसके जैसा है, मानो उसके बाद ई नेम लाइक एस परसेंट, परसेंट इज एनी की, उसके बाद कुछ भी है हमको नहीं पता, सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन एस से शुरू होना है। यही चीज अगर एंड्स विथ एस करना होता तो हम ये परसेंट साइन को यहां लगाते, इसको मिटा देते, तो दैट इज द सेम। आई प्रेस दिस, तो यू सी जून्स, एडम्स, जेम्स सब लास्ट में ऐसे, पहले कुछ भी रहे। तो उन लोगों का नाम बताओ, डिटेल बताओ जिनका नाम इससे खत्म होता है। ओके, अब हम बोलते हैं कि अच्छा उन लोगों का नाम बताओ जिनके बीच में, नाम के बीच में कहीं पे भी आई आता होगा। तो बीच में अगर आता है तो हम यहां पे आई लिखें और एक परसेंट इधर दे दे, बीच मतलब कहीं भी, समवेयर इट कम्स, सो it is this. So I press this. You see, King, Smith, Martin, Miller, all these names are appearing. So E name like percent S percent, percent I percent. तो इस तरह से हम खोज निकाल सकते हैं। I can make this query. तो like operator इस जगह पे यूज होता है। This is the use of the like operator. Okay? सर हाँ सर अगर सेकंड पोजीशन में अगर हमको, जिसमें सॉरी थर्ड पोजीशन में ही है, अगर हाँ। वो हमको फाइंड करना है तो थर्ड पोजीशन को कैसे करेंगे? थर्ड पोजीशन के लिए हम आर है। ओके, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP where e name like I. For this, can you see that? थर्ड पोजीशन पे Yes, I है। यस सर। So now, I was just about to tell you that. So now, percentage sign deals with any character substitution, any character. Whereas there is another that is called underscore. Underscore, हाँ, ये dash नहीं है, underscore. That is for single character substitution. Single character substitution. Okay, underscore से। तो इस underscore को हम यूज कैसे करते हैं? We have done it this way here, but let me, हम अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछे कि select all those employee whose names are 4 letters or 5 letters only, ठीक है, तो परसेंट देंगे तो कुछ भी ले लेगा ना। तो फ्रॉम EMP where ई नेम लाइक, ये सब लाइक के साथ ही यूज होता है। ई नेम लाइक, एक अंडरस्कोर दिए, दूसरा अंडरस्कोर दिए, तीसरा अंडरस्कोर दिए, चौथा अंडरस्कोर दिए, अगर 4 लेटर से नाम हम चाहिए तो। उसके बाद इसको बंद कर दिए, प्रेस दिस, यू सी यू गेट ओनली किंग फोर्ड वार्ड। 4 लेटर, 4 अंडरस्कोर दिए, दिस इज फॉर सिंगल कैरेक्टर, कुछ भी कैरेक्टर हो तो ये आएगा। हम अगर चाहते हैं कि भाई ऐसा आए कि के से शुरू हो, उसके बाद 4 लेटर का नाम हो लेकिन के से शुरू हो, परसेंट देने से आ जाएगा, लेकिन कुछ भी आ जाएगा ना। 4 लेटर का नाम, 5 लेटर का नाम, 7 लेटर का नाम, माने किंग भी आएगा तो करुणा भी आएगा, तो करुणा स्वामी भी आएगा, तो सब आ जाएगा उसमें अगर परसेंट दे देंगे तो, के परसेंट लिखेंगे तो। लेकिन हम बोल रहे हैं, माई क्वेश्चन इज कि वो 4 लेटर का होना है, इट शुड स्टार्ट विथ के। तो आई राइट select asterisk from EMP where e name like A 1, 2 and 3.
4 लेटर का है तो के तो पहले लिख ही चुके, अब इतना लिख दिए एंड यू प्रेस एंटर, यू सी यू गेट की। करुणा होगा तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज गॉट 5 लेटर्स, जो कि इसके अंदर में अलाउड नहीं है। के बाद 3 ही लेटर अलाउड है बिकॉज माई क्वेश्चन वाज ओनली 4 लेटर्स टू बी अलाउड। सो दिस इज द जॉब ऑफ लाइक ऑपरेटर। ओके, नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बड़ा खतरनाक चीज है। वॉच दिस, सिलेक्ट asterisk from EMP, from EMP where, from EMP, चलो, okay. You can see here this commission, इधर क्या है, ये कमीशन फील्ड वाला जो ये 0 है क्या? नो नो, these are null। नल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 इज नॉट नल। एक चीज जानो, 0 इज 0, इट हैज अ वैल्यू 0, नल मीन्स नथिंग। तो दिस इज नल। हियर यू कैन सी MGR नल, माने किंग जो है उसका मैनेजर कोई नहीं है, किंग का कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है। तो ये दीज नल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम तुमको बोले हैं कि ये क्वेरी लिखो, उन लोगों का नाम बताओ जिन लोगों को कमीशन नहीं मिलता है। हाउ विल यू राइट द क्वेरी? यू आर स्टक, नहीं मिलता है, तुम बोलोगे 0। अरे तो 0 बोलोगे, इफ यू राइट दिस सिलेक्ट, कौन है भाई, लेट मी चेक, oh no, fine। So now you write select asterisk from EMP where COMM equal to 0। एक ही आदमी आएगा टर्नर, लेकिन इन लोगों को किसी को कमीशन नहीं मिलता है भाई, तो उन लोगों को कैसे देखेंगे? So for them we have that option, select asterisk from EMP where COMM is null। क्या, जिनका भी कमीशन नहीं है उन लोगों का नाम। सो ये इज नल बड़ा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू हैंडल द नल वैल्यूज, ठीक है। नल वैल्यूज का एक और बाद में हम फंक्शन में देखेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम नल वैल्यूज कर रहे हैं तो हम एक चीज बता देना चाह रहे हैं। वॉच दिस केयरफुली, सिलेक्ट asterisk नहीं, asterisk नहीं, select name, comma, job, comma, sal multiplied by 12 plus commission from EMP। ये हम चाहते हैं कि उसको एनुअल कितना पैसा मिलता है टोटल, तो 12 से गुना कर दिए उसका सैलरी को, और कमीशन जितना मिलता है उसको ऐड कर दिए, वो हम देखना चाहते हैं। सी व्हाट हैपेंस, क्या हुआ? किंग को सैलरी नहीं मिलता था क्या? है भाई, इसका 5,000 रुपया सैलरी, लेकिन बोल रहे हैं कि 12 से मल्टीप्लाई करके कमीशन जोड़ दो तो गायब हो गया सब। इन लोगों का आया, इसका आया, और इन लोगों का कुछ नहीं आया। इट इज बिकॉज नो अरिथमेटिक, माइंड दिस, नो अरिथमेटिक ऑपरेशन इज पॉसिबल विथ नल वैल्यूज, इट विल गिव यू नल। नल के साथ कुछ भी करोगे तो इट विल गिव यू नल। तो इसका मतलब क्या है? तो गलत रिजल्ट दे दिया ना। So what we do is we use a function here, watch this, that is what is called null value। okay, तो मान लो यहां पे we write the function NVL COMM comma 0। अब उसको हम बोले हैं टोटल। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इसको अगर हम रन करते हैं तो what do you see is this,
Okay, what do you see is this? 19,500 ये अभी भी है, 15,500, 16,400, 18,000 सब है। यहां इसका सैलरी 5,000 था, इसको मल्टीप्लाई करते 12 से तो 60,000, कमीशन जोड़ते तो 60,000 ही आना था। यू कैन सी 60,000। तो ये क्या है? एनवीएल इज अ फंक्शन। एनवीएल स्टैंड्स फॉर, लेट मी टेल, ये टोटल पे जो लिखे हैं दैट इज एलियास उर्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम बोले क्या कि नल वैल्यू के साथ ये अगर ऑपरेशन कर रहे थे तो इट वाज नॉट पॉसिबल, सब नल बना दे रहा था। सो आई यूज्ड अ फंक्शन कॉल्ड, बाद में पढ़ेंगे आराम से फंक्शंस। वी यूज्ड अ फंक्शन एनवीएल व्हिच सेज कि ठीक है भाई, तुम कमीशन फील्ड को वॉच करो। Watch this commission field. If it is found to be null, if it contains null value, replace it by 0 and do the calculation. तो ये क्या किया? कमीशन फील्ड में गया, जहां इसको मिला नल तो उसको वो 0 से कन्वर्ट किया। ठीक है, डेटाबेस में नहीं लिख रहा है, बफर में हो रहा है। 0 से कन्वर्ट किया तो डेफिनेटली 5,000 multiplied by 12 plus 0, 60,000. So you get this value. So NVL is a function which is basically there to eliminate null. ये तुम कमीशन है तो उसको 0 बनाओ। यहां तुम अगर 5 लिख देते तो क्या हो जाएगा? जहां नल मिलेगा उसको 5 से रिप्लेस कर देगा तो 60,005 हो जाएगा यहाँ। ओके, सब में 5 ऐड हो जाएगा, but that is definitely erroneous, that you don't want to do, so that is why I have written 0. ठीक है, so watch the commission field and replace it by 0. तो जब ये हो गया, between and in, like, is null, तो इन चारों का ऑपोजिट भी पॉसिबल है। तो ऑपोजिट क्या है? नॉट बिटवीन एंड, नॉट बिटवीन एंड, छठा नॉट इन लिस्ट, सातवां नॉट लाइक, आठवां नॉट इज नल। अंग्रेजी में नहीं होता, अंग्रेजी में बोला जाता है इज नॉट नल। ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट इज नल नहीं है, इट इज नॉट नल। तो ये उल्टा देगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट इट विल डू? अगर हम बोल रहे हैं कि नॉट बिटवीन 1,000 एंड 2,000, यानी 1,000 और 2,000 और उसके बीच का वैल्यू को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो देगा। बिटवीन एंड क्या बोल रहा है? ये यहाँ पे है 1,000, यहाँ पे है 2,000, बोल रहा है कि इसके बीच का, इसको और इसको लेके यहाँ के बीच का जितना वैल्यू है सबको दो। तो नॉट बिटवीन और एंड क्या बोलेगा? इधर वाला दो, इधर वाला दो, जो 1,000 और 2,000 के बीच में नहीं है उधर वाला दो। तो ये उन वैल्यूज को देगा। नॉट इन, हम बोले कि 1,000, 2,000 और 3,000, इनको छोड़ के बताओ। नॉट इन कहने का मतलब जस्ट ऑपोजिट। इन मतलब जो इसमें है, दिस और दिस और दिस। लेकिन नॉट इन का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, इसके अलावा जो भी है सबको दिखाओ। नॉट लाइक, हम बोलते हैं कि उन लोगों का नाम दिखाओ जिनका नाम जो है के से शुरू नहीं होता। सो ई नेम नॉट लाइक के परसेंट, ई नेम नॉट, ऊपर ऊपर लिखना है बाकी सब। हाँ, मैंने इधर वेयर भी लिखना है। आई एम अज्यूमिंग कि आप इतना दूर तक समझे तो इसीलिए ऊपर नहीं लिखे। उसके बाद ये आधा, ये सब बिना लिखे, ई नेम नॉट लाइक के परसेंट सर नहीं आ रहा है, आप बताए थे। नो नो नो, all these are to be written, select this from this where e name not like k percent. So इसका क्या मतलब हुआ? उन लोगों का नाम जो कि के से शुरू नहीं होता है, उनका नाम जिनमें के बीच में कहीं नहीं आता है। सो परसेंट के परसेंट। उन लोगों का नाम जो कि 4 डिजिट का है लेकिन अंत में के नहीं आता है, अंडरस्कोर 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 के, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? नॉट लाइक। ये होगा। इज नॉट नल, यानी हम उन लोगों को देखना चाहते हैं जिनका सैलरी नल नहीं है, माने जिनको कमीशन। द क्वेश्चन इज
फाइंड आउट दोज हु गेट ए कमीशन। हु गेट ए कमीशन क्या लिखेंगे भाई, क्वेरी में क्या लिखें? सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इक्वल टू क्या, जिनको कमीशन मिलता हो। अरे मिलता हो कैसे बताएं भाई? तो दैट इज व्हाई टू हैंडल देम वी से वेयर कमीशन इज नॉट नल। नल नहीं है मतलब मिलता है, चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, वो है कमीशन इज नॉट नल। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नॉट नल, बिकॉज इस तरह के लिए अदरवाइज हम अंग्रेजी में कुछ फ्रेम नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई वी यूज दिस नॉट नल। नाउ so I hope you have understood these operators. अब एक चीज खाली you need to note, just note somewhere. Okay, the note is that when we use and an or operator together, or operator together in where clause, in where clause, then and clause is performed first. And clause is performed first. That means and has a higher precedence, and has a higher precedence. Okay. Now I know you are using Google Meet. So those who are using laptops, those who are using mobiles, I don't know how they will be able to do that. But I just want those who are using laptops or computers to answer this question. Write a query to find. अच्छा इसको कैसे लिखोगे? तुम वर्ड खोलो, वर्ड में जस्ट टाइप कर दो इस क्वेरी को और प्रेजेंट करो. Everybody will be able to see. Find all clerks who earn between 1,000 and 2,000. So this is your question. Find all clerks who earn between 1,000 and 2,000. This is question number 1. And question number 2 is find all employees, और जिनके पास वो नहीं है प्लीज राइट इट इन सम पेपर पे लिख के क्वेरी बनाओ. माने बोर्ड नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो फिर यू राइट इट इन सम पेपर. फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हु आर आइदर क्लर्क्स or who earn between 1,000 and 2,000. Anyone with the answer of question 1? ऐसे भी माने तुम मुंह से भी बोल सकते हो. एक हिंट दे रहे हैं इसके लिए. Select asterisk from
EMP इतना दूर तक बता दिया और नहीं बताएंगे. Where shall between 1000 and 2000 and job equal to clerk. This is the answer of question number 1. And for the second question, here the answer is or job equal to clerk, or job equal to clerk. Fine. So now I give you 2 questions. Find all managers with salaries over 1500 and all salesmen, all salesmen or salesman, whatever, salesmen, MEN. Number 2, find all managers and salesmen with salaries over 1500, with salaries over 1500. Now these are the 2 queries. I want the answer by tomorrow. I will check whether you can answer it in the LMS. तो हम वहां पे भी दे सकते हैं so that you can answer. Otherwise, be prepared with the answer. ठीक है? Be prepared with the answer. I would like to see what is the answer by all of you. ठीक है? So let's stop today. This we are doing as our Oracle exercise plus your SQL part जो तुम्हारा कोर्स में है, that is also there. So I am doing it both. ये syllabus भी कर रहे हैं और lab वाला part भी कर रहे हैं. So this will enable you to learn SQL statements and SQL. यही चीज तुमको lab में करना है. We will do the lab assignments also. वो भी हम करेंगे. ये कुछ दूर करने के बाद एक्चुअली आई विल गो बैक टू माय DBMS. उसको समझने में आसानी होने के लिए हम यहां तक गए थे. एंड अगेन थैंक यू नमन फॉर योर research on that Mazumdar book that will help majority of the students. ठीक है? So let us stop for today. We stop it for today. We see you all tomorrow. But उसके पहले ये 2 query ready रहे. ठीक है? And I want to see that because इसमें एक छोटा सा चीज तुमको हमको clarification देना है. But I want to see first how you make this query. चलो, thank you very much. See you tomorrow. Thank you, sir.